तो गाइज मैं सबसे पहले अपने बारे में आपको बता देता हूँ. आई एम यशांक सयाल और इट्स बीइंग 8 years now. I'm working with StoneX. So now I'm taking care of upper North India. That includes Jammu Kashmir, Haryana, Punjab, Tri-City, these parts, and I'm taking care of Northeast also and West Bengal. That includes in Kolkata and whole Northeast. तो इट्स बीइंग 8 years. तो 8 years में पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर बिकॉज हमारा हम बोलते हैं जो हमारा पत्थर का ट्रेड है बेसिकली ये इट्स लाइक ए सी कि हर दिन आप नया सीखते हो बिकॉज इतनी नॉलेज है इसके अंदर इतने बिकॉज मिनरल इट्स ए नेचुरल रिसोर्स. ये कोई कैटलॉग से कोई वीडियो से वी कांट लर्न इट. तो जितना जितना एक्सपीरियंस होता जाता है जितना घिसते रहते हैं हम बेसिकली तो उतना हमें सीखने को मिलता रहता है इसके अंदर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोन. तो कई लोगों को इसके अंदर क्लैरिटी इतनी भी नहीं होती है बिकॉज बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है. इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड लाइक टाइल है या सीपी है सैनिटरी है. इट्स वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. तो स्टोनिक्स इज़ अ ब्रांड जिसने इसको इंडिया के अंदर बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनेज कर रहा है. तो वी बिकम अ कॉर्पोरेट नाउ एंड वी आर अमंग टॉप 3 ब्रांड इन इंडिया नाउ. तो मैं वही आपको आज कंपनी के बारे में एंड स्टोन के बारे में इसकी माइनिंग कैसे होती है एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आपको सब एक बार आई एक्सप्लेन टुडे. So I'll start with my corporate video on what is StoneX. It all starts with a vision. Add ambition to it. Presenting StoneX India, a testimony to grit, focus, and passion. But it all boils down to one thing: you. A pursuit of excellence, setting new benchmarks all along. And many industry firsts. Widespread presence. Investment in technology. Unmatched brand experience. All leading to your unwavering trust in us. Come, partner with us in this journey. Thanks guys. So this is a basic intro. तो StoneX को 18 साल हो गए हैं टोटली इस ट्रेड में एंड दे आर द फर्स्ट जनरेशन. तो आई मीन टू से फर्स्ट जनरेशन इनके जो गौरव अग्रवाल विकास अग्रवाल जी एंड सौरभ अग्रवाल हैं इनके फादर्स मतलब इस बिज़नेस में नहीं थे. दे आर द फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया है और इस लेवल पे इस पोटेंशियल पे आके लेके आ गए. तो बेसिकली अब मैं आपको शुरू करूँगा मतलब शायद सबको नहीं पता कि बेसिकली स्टोन आता कहाँ से है मतलब ट्रैवल कैसे करता है कि फ्रॉम अ माउंटेन ऑफ इटली करारा से कट के ब्लॉक कटता कैसे है बेसिकली और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और आके उसकी स्लैब्स कैसे कटती हैं फिर उसको पॉलिश कैसे होता है. तो मैं आपको बेसिक जो रूट्स हैं इसकी मैं रूट्स में लेके जा रहा हूँ आपको. नाउ वी ऑल आर गोइंग टू करारा वर्चुअली ऑब्वियसली. तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी माइनिंग कैसे होती है बेसिकली कि शुरुआत कैसे होती है इसकी. तो दैट्स अ स्मॉल वीडियो ऑफ 8 minutes प्लीज़. Carrara marble is one of the most prestigious marbles in the world. A slab can cost up to $400 per square meter, and over history it has been used for some remarkable buildings. Think of the Pantheon in Rome, or Michelangelo's iconic statue, David. In fact, Michelangelo himself used to come here
to choose personally the slab for his masterpieces. And today we are about 1,700 meters above the sea level in one of the 188 quarries that are here in the mountains of Carrara to find out why this marble is so special. What from a distance might look like snowy summits are actually mountains made entirely of marble. Welcome to the Apuan Alps, a mountain range in northern Tuscany that stretches for 58 kilometers and reaches 2,000 meters high. Marble has been carved here since the ancient Roman times, and because of its millennial history, the Carrara quarries have produced more marble than any other place on earth. The market as a whole is worth over 1 billion euros, $1.1 billion, and produces 4 million tons of marble every year, with 13,000 people involved. The quarries were even featured in a James Bond movie, with Daniel Craig driving an Aston Martin DBS up the marble slopes. But the real quarries are nothing like the 007 scene, and we wouldn't really recommend driving your Aston Martin up there. Roads are steep and small, with lots of dangerous turns. If you think that, every day, 600 truck drivers drive on these streets, each carrying 50 tons of marble. Yeah, that sounds totally safe. We visited two quarries, Cava Perciola, number 147, and Cava Fior di Chiara, number 76, which is a cave inside a mountain. The first thing you notice when approaching a quarry is its perfectly linear shape. It almost looks like the mountain has been sliced in perfect square blocks. And this is actually the case. Marble extraction in Carrara is done with a 5mm diamond wire. To get a slab of marble, the quarrymen drill 3 holes, a vertical one from the top. This is basically a step कि block को कैसे काटते हैं mountain से एक. And 2 horizontal ones from the base. The 3 holes meet in one single strategic spot. The diamond wire is positioned inside 2 of the drill holes and is rotated by a machine placed on rails. The cable then sews the rock and is continuously filled with water as it turns, as water acts as lubricant. The technique is repeated 2 times to sew the remaining sides until the block is fully detached from the mountain. The wire technique can also be used to shape and square big blocks after them being cut. Instead of the wire, sometimes big chainsaws may be used. As marble blocks are extremely heavy, things can go wrong and damage the slab. For example, there could be natural fractures in the stone that make the block crumble into pieces after extraction. This is why the region of Tuscany has put in place regulations to ensure that at least 25% of the marble extracted in a quarry is actually turned into blocks. But 25% is a small number for some, who worry that the Apuan Alps will soon disappear in the quest for the perfect slab. And yes, this gap between scrap marble and usable blocks, together with Carrara marble's worldwide reputation as a luxury stone, is making prices skyrocket. For example, a slab of Statuario or Caracata marble can cost over 10,000 euros, $11,000 per ton. And if that marble is extracted from a cave, expect the price to go up, as cave mining bears higher extraction costs. The more expensive one is usually the type of marble that's exported. Last year, 1.2 million tons of blocks crossed the Italian border to China, the United States and Germany as the top. What I mean to say कि मार्बल में जैसे हर एक किसी को एक डाउट रहता है कि मार्बल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है. इट्स ए नेचुरल रिसोर्स. तो जैसे अब करारा आप देख रहे थे कि कितना बड़ा बिजनेस है करारा का ही, और ऐसी करारा के अलावा वी हैव माइंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन चाइना, इन टर्की, इन स्पेन, इन ग्रीस, इन इंडिया ऑल्सो. तो मार्बल का प्राइस डिसाइड होता है बेसिकली. जैसे करारा की अगर बात करूँ मैं, करारा माइंस में से सतवारियो निकलता है. तो सतवारियो इज अ मार्बल विच इज़ वेरी एक तो वाइट है और वेरी रेयर ऑल्सो. तो प्राइस ऐसे डिसाइड होता है कि जितना बड़ा ब्लॉक होगा इन टर्म्स ऑफ स्लैब साइज और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी उसकी, और ऑब्वियसली उस पत्थर की ब्यूटी तो दिखी जाती है इसके अंदर. तो ये सारे बेसिकली चीज़ें हैं, काउंट होती हैं पत्थर के प्राइसिंग के अंदर. और मार्बल कितना रेयर है कि वो अबंडेंस में नहीं है. जैसे इंडिया में भी इतना पत्थर निकलता है लेकिन कुछ 50 रुपये फुट अपना इंडिया में वाइट मिलता है, लेकिन उसकी इतनी सारी माइंस हैं
छोटे साइज़ में मिलता है, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता बेसिकली वो। तो ये सब चीज़ें बेसिकली डिसाइड करती है कि मार्बल का प्राइस क्या हो। तो दीज आर द स्टेप्स। अगर मैं बात करूँ स्टोनेक्स इंडिया और मैं पर्सनली, हम मार्बल को एज अ स्टोन नहीं देखते। मतलब वी नो दैट कि यू ऑल पीपल आर आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट हर एक चीज़ में आर्ट देखता है, चाहे अपने प्रोजेक्ट्स में आप आर्ट देखते होंगे, हर एक चीज़ में आर्ट देखते हैं। तो सेम लाइक यू पीपल, मैं पर्सनली मार्बल के अंदर एक आर्ट देखता हूँ। वो मैं कैसे देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। एज एवरीबडी नो, एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट। जैसे पैब्लो पिकासो, ही इज़ अ क्यूबिकल आर्टिस्ट। वो क्यूब्स के साथ पेंटिंग्स को डिज़ाइन पैटर्न करते थे। तो एब्स्ट्रैक्ट इज आर्ट, इट्स अ पेंटिंग डिज़ाइन जो पेंटर्स बनाते हैं ऐसी, एंड इट कॉट्स लाइक एनीथिंग, इनकी बिडिंग होती है। तो दीज आर पेंटिंग्स जो मैन मेड है। तो इसको अगर मैं कंपैरिजन करूँ आपको, सी दिस इज़ अ मार्बल, मिलियंस ऑफ ईयर्स, एक पत्थर को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इट्स टोटल मिनरल्स। सो सी, दीज आर पेंटिंग्स ऑफ गॉड। कोई मैन मेड नहीं है, सब नेचुरल है। तो मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं इसको बनने में। सी द कलर, सी द पैटर्न्स। तो सोचो कितना एक्सक्लूसिव है ये सब। दिस इज ऑल वेरी एक्सक्लूसिव एंड दैट्स मेक्स द पीपल फॉल इन लव। ये नेचर की एक आर्ट है। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू यूज मार्बल, दे वांट टू गो फॉर अ मार्बल, एंड दिस इज फॉर लाइफ टाइम। या दिस वन, या दिस इज द थिंग। सपोज ये कमरा है, इसका सब वाइट है, एक दीवार पे लगा दिया, मतलब ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा डिजाइन किया है। लेकिन ये बाकली टोके बहुत सुंदर लगता है। बाकली टोके ना, बहुत अच्छा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। आपको जब दरवाजा नहीं है। बस बिल्कुल कंप्लीट। तो व्हाट डिड इट, इन्होंने मार्बल के स्कल्पचर्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई। तो दिस इज द पेंटिंग ऑफ गॉड। आई मीन थोड़ा डेप्थ में सोचना है हमने, दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो इसकी जो जैसे पैटागोनिया है जो आपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बताई, इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग, जो इसका पैटर्न जनरेट उन्होंने कैसे किया? मैम, इसका पैटर्न जनरेट नहीं होता। दिस इज ऑल नेचुरल। मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीटली नेचुरल। इट्स कम्प्लीटली, ये ना ब्लॉक की फॉर्म में ही आता है। ये पूरा ब्लॉक ही था। ब्लॉक को हमने कटिंग किया। तो कटिंग करने के बाद जब जैसे ब्रेड की स्लाइसिंग करते हैं, तो ब्रेड की स्लाइस करी हमने, तो ये पूरा ऐसे निकला एक। दैट्स द ब्यूटी। दैट्स अ ब्राजीलियन क्वार्ट्जाइट। ये ब्राज़ील का है, साउथ अमेरिका। तो वहाँ से निकलता है। दैट्स वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर। और इट्स सो ब्यूटीफुल। आई मीन, और ये बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत रेयर ही मिलता है ये। माउंटेन की एज पे भी आई गेस डिपेंड करता है। मैम यस, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वो सब मैंने ये सब चीज़ों के लिए ना, देखो मेरे को पता आप लोग बहुत डेप्थ में ऑलरेडी गए हुए हर एक चीज़ में। तो हम तो नोबडी कि ये सब बताने के लिए, लेकिन इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ना, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड एक ई बुक मैंने जनरेट करी है, बिकॉज आई रियली वांट ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी बोरिंग ना हो। तो पर्सनली ये 6 महीने लगा के आई क्रिएटेड दिस। जो भी मेरा 8 साल का नॉलेज था, मैंने इसको इन 6 चैप्टर्स में डिवाइड किए। तो जब भी आपको कभी टाइम मिले, छुट्टी वाले दिन या कभी भी, तो एक बार इससे गो थ्रू हुई, इसको रीड करिए, यू गोना लव इट। सी, तो मैं इसमें बता देता हूँ बेसिकली क्या क्या चैप्टर्स हैं। इसके अंदर एक बेसिकली इंट्रोडक्शन आ जाता है, ओवरव्यू ऑफ नेचुरल स्टोन, नेचुरल स्टोन्स के बारे में बेसिक्स, एंड साइलेंट फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल स्टोन्स, प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल स्टोन्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ नेचुरल स्टोन्स अ बून फॉर नेशन, कि स्टोन यूज़ करने से बून फॉर नेशन, एंड कंक्लूजन क्या है। तो ये मेरा कंटेंट है बेसिकली। आप मैनेज किया है कि माइनिंग कैसे होती है, स्टोन्स में कितनी तरह के टाइप्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब सिंगल सारी डिटेल मैंने इसके अंदर कैप्चर करने की कोशिश करी है, एंड आई होप यू रियली लाइक इट। आई एम गोइंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ मा स्टोन्स, द चैप्टर 3 इज दिस, एंड इग्निशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उसके अंदर सब कैटेगरीज क्या हैं? इग्निशियस में ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड पोर्फिरी, मेटामॉर्फिक में क्वार्ट्जाइट, स्लेट एंड मार्बल, सेडिमेंट्री में सैंडस्टोन, ट्रेमेटाइन एंड लाइमस्टोन्स। अब इसके बारे में भी पूरा डिटेल के अंदर आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये बने कैसे हैं। कि जैसे ग्रेनाइट है, वो लावा निकला ज्वालामुखी से और वो मेल्ट होके और मिलियंस ऑफ ईयर लगे उसको, तो दैट्स व्हाई ग्रेनाइट क्रिएटेड। तो सब इसके अंदर ईच सिंगल डिटेल है पूरी।
पूरा A to Z। तो इसका मैंने एक ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी बना हुआ है PDF, आप लोगों को मैं मोबाइल नंबर्स पे सेंड कर दूंगा, तो यू विल हैव इट। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो इससे सब क्लियर हो जाएगा। We have 6 chapters in that, the conclusion में, and that's my the LinkedIn ID and this। तो वही पर्सनली फॉलो माइकल एंजेलो, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो माइकल एंजेलो ने कहा था कि आई सॉ द एंजल इन द मार्बल एंड यू नो एंड कार्व्ड अंटिल आई सेट हिम फ्री। तो मतलब दे पीपल थिंक लाइक दैट, दिस इज द थिंग। एंड ये एक और मैंने आपके लिए PPT तैयार की है, लेकिन इसके अंदर मैं बोलूँगा कि यू पीपल नो मच अबाउट दैट, लेकिन मैंने इसको तैयार किया है, प्रिपेयर किया है बेसिकली कि इस थीम्स के अकॉर्डिंग हम कौन सा मार्बल क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। तो ये थीम्स आप सब जानते हैं, मुझे शायद आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज यू ऑलरेडी आर प्रोफेशनल। कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स है, इसमें क्या बेसिक चीज़ें होती हैं सारी, एंड हम इसके अंदर टू बीइंग अ मार्बल प्रोफेशनल कि कलर हम कौन कौन से रिकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को। ग्रे, वाइट, ब्लैक, बेज, मतलब कंटेम्प्रेरी स्टाइल के अंदर हमारे ये स्टोन्स के कलर्स हम रिकमेंड करते हैं। दिस इज ऑल ओवर व्यू रेफरेंस इमेजेस। तो ये मेरे एग्जैक्ट स्टोन्स हैं जिनके सैम्पल्स ऑलरेडी ऑफिस में पड़े हुए हैं, और इफ़ यू वांट दैट प्लीज़ लेट मी नो, मैं सारे सैम्पल्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे थॉसिस वाइट है, दिस इज़ फ्रॉम ग्रीस, एंड बल्बरी बेज है, कासानोवा है, क्रीमा सियाना है। दीज आर द स्टोन्स जो हम इस इंटीरियर टाइप्स के अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं। These are also the Carrara, Michelangelo, Satvario, Bianco Lassa, Dior Pearl, Granatello, Bulgari Grey, Grigio, Blute, Azul Percheni, Lagos। तो these are the stones with origins, ताकि आप लोग क्लाइंट्स को भी बता सकें कि इस पत्थर का ओरिजिन क्या है। Everyone has a history, तो स्टोन की हिस्ट्री ये है। This is all connected। ये दिस इज फॉर एलिवेशन के लिए हैं ये, कि कंटेम्प्रेरी में हम एलिवेशंस पे क्या स्टोन सजेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर। तो वन इज पियात्रा फिनो, क्रॉस कट, फैरागामो बेज एंड मोका क्रीम। दीज आर द स्टोन्स जो हम कंटेम्प्रेरी में क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। क्लासिकल इज अगेन अ वेरी पॉपुलर। तो क्लासिकल इंटीरियर्स हम सबको पता है, तो इसके अंदर बेसिकली कलर्स पे मैं आऊँगा। दिस इज गोल्ड, बेज, ब्राउन, येलो, वाइट, ये सब बेसिकली कलर पैटर्न्स रहते हैं इसके अंदर। इसके अंदर इनलेस का वर्क काफ़ी रहता है क्लासिकल में। तो दीज आर द थिंग्स। तो इसमें भी स्टोन सजेशंस हमने इसके अकॉर्डिंग दिए हैं। थॉसिस वाइट, बियांको एक्रोपोलिस, बियांको, पिकासो एडेंट, ऑपुलेंट, क्रीमा सियाना, बल्बरी बेज, कासानोवा एंड ग्रिगियो ब्रोंज अरमानी। दीज आर द स्टोन्स जो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। दीज ऑल्सो, ये वाइट के ऑप्शंस आ गए। माइकल एंजेलो हो गया, माइकल एंजेलो, सतवारियो एंड मोंटेपुल्चेनो, डियोर पर्ल, बियांको लासा। दीज आर द ऑप्शंस। ये एलिवेशंस के अंदर जो हम इसके हम क्लासिकल हाउसेस में बेसिकली बेज होता है, तो फैरागामो इज अ बेज, मोका क्रीम अगेन अ बेज थे। तो दीज आर द स्टोन्स। ये PPT भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस ऑल्सो। और दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी पॉपुलर इंटीरियर टाइप, जिसको हम ग्रीक स्टाइल भी बोलते हैं। मतलब सिंपल रहता है, बहुत वाइट्स में चलता है। तो इसके अंदर मेन फीचर्स स्टोन यूज जो हमारे होते हैं मोस्टली वाइट्स, लाइट बेज। हाँ या वही ग्रीक स्टाइल भी बोलते हैं, जैसे तांतरूनी है कि वहाँ पे वाइट्स की थीम चल रही हैं। तो यू पीपल ऑलरेडी नो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मैं स्टोन से कनेक्ट कर रहा हूँ कि हम कैसे उसको कनेक्ट, क्या चीज़ें सजेस्ट करते हैं रेफरेंस इमेज ऑफ। तो इसमें थॉसिस वाइट है, SRS स्टफ के साथ हमारा बियांको एक्रोपोलिस हम यूज़ कर सकते हैं, पिकासो एड्रेंट, ऑपुलेंट, क्रीमा सियाना। दीज आर द स्टोन्स जो हम इस इंटीरियर टाइप में यूज़ करते हैं। अगेन दीज आर सम ऑप्शंस। और एलिवेशन के लिए फारागामो एंड मोरेंसो ब्लू, मोका क्रीम विद ओरिजिन्स। पोर्चुगल के हैं सारे स्टोन्स। थैंक यू। दिस इज अ स्मॉल PPT आई हैव शेयर्ड। सिलवासा और किशनगढ़ दो बेसिकली मंडी है। मंडी इन द सेंस कि दो होलसेल मार्केट है इंडिया की। वन इज सिलवासा इन उधर महाराष्ट्र एंड वन इज किशनगढ़ राजस्थान। तो यहाँ पे स्टोन की प्रोसेसिंग होती है। तो वी हैव अ फैक्ट्री इन किशनगढ़ ऑल्सो। अब मैं आपको किशनगढ़ का टूर कराऊंगा
क्योंकि मैक्सिमम आप लोग शायद नहीं गए होंगे, स्टोनेक्स की फैक्ट्री विजिट नहीं की है, तो भी हम किशनगढ़ जा रहे हैं, राइट, ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ग्रीस। हाँ सर, ब्लॉक्स आते हैं, इम्पोर्ट होते हैं, और कुछ स्लैब्स भी आती हैं, जैसे जो एग्जॉटिक मार्बल है हमारा, जैसे पाटागुनिया है, अमोंजोनाइट है, ये बाहर से ही प्रोसेस होके आता है। यस। तो उस पे एवरी कट के अंदर सेम पैटर्न होता है कि डिफरेंट पैटर्न? सर एक ब्लॉक के अंदर आपको सेम पैटर्न मिलेगा। ब्लॉक का एक पैटर्न। अगर ये सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, टन के हिसाब से आता है, तो इसकी मैं स्लाइस करूंगा तो जैसा आगे है तो मिरर इमेज होगा उसका सारा, लेकिन लॉट टू लॉट हमेशा सब फर्क होगा, सेम मार्बल में भी फर्क मिलेगा। दिस इज ऑल थिंग। तो ये बस टूनिक्स एकदम लेटेस्ट इक्विप्ड है, टोटल टेक्निकल टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमारे यहाँ पर मिनिमम लेबर इंटरफेरेंस है, सब रोबोटिक्स है, सब चीज़, स्लैब उठाने से लेकर इसको रेजिन तक, लाइन तक लेके जाने में सब रोबोटिक्स यूज़ है। तो दिस इज़ द हाई टेक वन इन इंडिया राइट नाउ। देंगे किशनगढ़ की फैक्ट्री का एक फिजिकल टूर, बिकॉज अभी थोड़ा सा कंडीशन ठीक हो जाए तो डेफिनेटली विल प्लान, ये सब चीज़ें आपको एक बार फिजिकली दिखाएंगे, एक्सपीरियंस कराएंगे, एंड यू विल लव इट, बिलीव मी, राइट। तो एक बार आप सर, जैसे क्लाइंट को अगर मैं सजेशन की बात करूँ, पहले तो जैसे हमने इंटीरियर्स का डिसाइड कर लिया कि मॉडर्न हाउस है या क्लासिकल हाउस है। तो मॉडर्न हाउस में बेसिकली आज की जो थीम चल रही है वो ग्रेज हैं, जो मॉडर्न कलर हैं। जैसे पुराने इंडिया में जब आए थे मार्बल, दैट इज़ अ बॉटेचिनो एंड डायना, जो बहुत बेसिक मार्बल है। तो इट्स बीइंग 10 साल हो गए हैं उस मार्बल को आए हुए। तो आज की डेट में सिर्फ ये कैटेगरी ना बिल्डर्स और बिल्डर्स यूज़ करते हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट बना के बेचना है अपना, या जो कुछ अपने लिए शौक से नहीं बना रहे। अगर मॉडर्न हाउस में बात करूँ, जैसे स्टूडियो आरडीडी ने किए हुए हैं हाउसेस, तो मैक्सिमम ग्रे थीम चलती है। तो उसके अंदर बल्बरी ग्रे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारा, न्यूटन ग्रे एक लेटेस्ट हमारा चल रहा है, एंड उसके बाद वी हैव क्रीमा सियाना, वी हैव ग्रीगियो सियाना। तो दीज आर द लेटेस्ट मटेरियल जो हम क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। और वो क्यों सजेस्ट करते हैं, नॉट ओनली कि ये ग्रे हैं, ये टेक्निकली टेस्टेड मटेरियल है हमारे सारे। हर एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट से पहले और एट अ टाइम ऑफ लेइंग हम एक लैब में टेस्ट कराते हैं कि इस मटेरियल में स्ट्रेंथ कितनी है, कि इन फ्यूचर जाके इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब मटेरियल्स जो हम आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, ये टेक्निकली टेस्टेड हैं सारे। इसमें आपको एक भी कंप्लेंट कभी फ्यूचर में नहीं मिलेगी। जो लोगों का मिथ बना हुआ है कि मार्बल के अंदर छोटे पेन होल्स क्रैक हो जाते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, तो ये सब टेक्निकली टेस्टेड मटेरियल है। So is it better to have a stone in external cladding or it's better to have a laminum instead of? सर it's totally a choice of आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर कि उसको कुछ पैटर्न चाहिए। इसी जैसे आप देख रहे हैं इसमें रेशा है, कि रेशा चाहिए उनको, कि एक प्लेन ऐसा चाहिए, दिस इज़ अ स्टोन लैम्प जो लगी हुई है। तो टोटल एक आप लोगों की चॉइस है, तो दोनों जा सकते हैं। हाँ, बट स्टोन का मैं फ़ायदा ये बताना चाहूँगा कि लाइमस्टोन जो होता है इसका टेक्निकल बेनिफिट्स भी हैं। दैट मेक्स अ हाउस टेम्परेचर कम रखता है घर का,
क्योंकि लाइमस्टोन है जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं बेसिकली, तो हीट एब्जॉर्ब करता है। ये टेक्निकल बेनिफिट ये है इसका एक सारे लाइमस्टोन्स का, तो एक एडवांटेज है स्टोन का। और ऑब्वियसली स्टोन क्या है कि इट्स फॉर अ लाइफ टाइम, स्टोन हमेशा लाइफ टाइम है आपका। इवन फ्लोरिंग पे भी अगर आप बात करें, कुछ आफ्टर ईयर्स कुछ स्क्रैचेस आते हैं या पॉलिश कुछ हो जाता है 5-10 साल बाद, तो जस्ट एक बफिंग और रगड़ाई करानी है बेसिकली, वो एकदम नया का नया हो जाता है। Laminum, I think, is also not a natural project. नहीं, laminum is not natural. It's a porcelain tile basically, through and through body. It's not natural. And the size is 1 meter by 3 meter. It's not natural. इनफैक्ट इसमें रिसेंटली ही एक जो शेड है वो इसका सतवारियों का आया, अदरवाइज तो सारा लामिनेट प्लेन है। Plain और कुछ rustic form में, wood form में, and these sort of. Satvario में we have now matte finishing and glossy. We have different options. Even kitchen countertops के लिए भी है, 12 हम लॉन्च किए हैं हमने सतवारियो, तो we have that also. लामिनेट का स्ट्रक्चरल वेट कम है। हाँ, exactly. कि it's 3 mm पतला है। Facades we designed, so I think we required a laminum instead of stone. Because basically we are going for a tapered facades. सर स्टोन का देखो क्या है कि हम अगर पुरानी कंस्ट्रक्शन में जाए तो मैक्सिमम ट्रेमेंटाइन्स लग चुके हैं। तो अगेन ट्रेमेंटाइन इज़ ए कॉमन थिंग कि हर घर में बाहर क्या लगाना है, ट्रेमेंटाइन लगाना है। तो आप डिज़ाइनर्स लोगों के पास ना कुछ ऑप्शंस नहीं रहते थे, क्योंकि सब ट्रेमेंटाइन इंडियन कोई सैंडस्टोन और लाइमस्टोन लगाता नहीं है। तो नाउ दैट्स द रीज़न ओनली कि स्टोन लैम इतना पॉपुलर हुआ है और इतना यूज़ में आ रहा है, क्योंकि इसका एक साइज़ अच्छा है कि पूरे के पूरा कटिंग में अच्छा लग जाता है। 1 मीटर बाय 3 मीटर, 3 फुट बाय 10 फुट की स्लैब साइज़ है और वेट कुछ नहीं है इसका। एंड उसके बाद क्या, दिस इज़ ऑल केमिकल प्रूफ, वेदर प्रूफ, फायर प्रूफ, स्क्रैच प्रूफ। तो 20 ईयर्स की कंपनी इसकी गारंटी ऑलरेडी देती है हमें स्टोन लैम्प की। इसके एडवांटेज इतने हैं। तो स्टोन एक थोड़ा सा ट्रेमेंटाइन एक आउटडेटेड फॉर्म में मैं बोलूँगा, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन है। वी हैव नाउ 3 मोर लाइमस्टोन्स, वन इज़ पियात्रा फिनो, मोका क्रीम एंड फैरागामो। तो दैट्स बेसिकली एक नई प्रिक्वायरमेंट करी है हमने, नई लेके आए हैं मार्केट में। तो दीज आर द न्यू ऑप्शंस। टेक्निकली आप चूज कह रहे हैं कि सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिलेक्शंस तो चलो इंटीरियर्स करते हैं तो हमारी एक थीम होती है। अब आप कह रहे हो कि इसमें कंप्लेंट्स नहीं आती। अब कंप्लेंट्स मेजरली जैसे पोरस होता है और ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं कि हम ये बोलें कि नहीं ये स्टोन नहीं, आप ये लो, इसमें ये इसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये ज़्यादा बेटर है। गॉट इट। वो कंप्लेंट्स और स्ट्रेंथ वो क्या क्या चीज़ें हैं? मैम उसके अंदर मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो जो कि नेचुरल मटेरियल हैं सारे, जैसे लाइमस्टोन और दूसरे ये जो स्टोन्स हैं पोरस होते हैं, वाइट और लाइमस्टोन्स। आपने वो देखा होगा, पोरस होता है, वाइट स्टोन भी पोरस होता है और लाइमस्टोन्स भी पोरस होते हैं। आपने वो देखा होगा मंदिर में हम चम्मच से दूध पिलाते थे गणेश जी को। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो वाइट मार्बल की मूर्ति थी, जो साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो वाइट मार्बल होने की वजह से वो पोरस था, तो वो दूध मूर्ति सक कर लेती थी। ये तो सारों के साथ हुआ है हमारा, इट्स अ लाइफ थिंग। तो उसका रीज़न क्या था कि लेकिन वो मूर्ति वो मार्बल की बनी थी तो पोरस थी। अगर वो ग्रेनाइट की होती या मेटल की होती तो कभी ऐसा ना होता। दिस इज़ अ फैक्ट। तो ऐसी मैं वाइट की बात करूँगा, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो इटालियन है, चाहे वो हमारा ताजमहल वाला मकराना है, ये पोरस होते हैं। तो इसमें भी मैम क्या है कि देखो नेचुरल स्टोन होने के बाद हम इसमें टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। अब मैं नेक्स्ट जो आपको कवर करने जा रहा हूँ दैट इज़ SRS। ये एक प्रोसेस है बेसिकली जो हम ब्लॉक्स से करना शुरू करते हैं और स्लैब्स में करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम मार्बल की सारी पोरेसिटी ही ख़त्म करते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसेस। तो आंसर उसका टेक्निकल ये है कि इसमें पोरेसिटी ख़त्म कर देते हैं, तो मार्बल की जो एंड्योरेंस है, मार्बल की जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। इसके सारे पोर्स ही हम डेड कर देते हैं। Porosity is the only factor that you judge the stone strength or No ma'am, there is lot of other factors also. I just want to know that. इसमें मैं दैट इंक्लूड्स, इसमें ये करना चाहूँगा कि एक तो कौन सी माइंस का मटेरियल है, ये बहुत डिपेंड करता है। आप जनरली आप देखेंगे, अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊँ, जो ज़्यादा वेब वाला मटेरियल होता है ना, वेब जिसमें पैटर्न रेशा चलता है, रेशा वेब, तो बेसिकली उस रेशे के अंदर रहती है। और हमारी इंडियन मार्केट में क्या होता है मैम कि लोग यहाँ पे पत्थर बेचते हैं 14 mm 15 mm का पत्थर। हाँ, तो वो क्या है उसके अंदर, मतलब ये लोकल मार्केट में है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज़ 18 mm।
18 mm और 20 mm, राइट। तो अब लोग 15 mm का पत्थर काट के बेच रहे हैं ब्लॉक में से प्रॉफिट के लिए, तो मैम ये दिक्कत सब उधर आती है टेक्निकली कि पत्थर की वेंज खुल रही हैं, उसमें क्रैक डेवलप हो रहे हैं, या उसके अंदर ऑलरेडी लोग छोटे वेंडर से फिलिंग करके बेच रहे हैं। तो मार्बल कहते हैं जब घर बनता है ना, तो दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा ठगी होती है बेसिकली। ऐसा लोगों का सोचना है कि एक लकड़ लेते टाइम एंड सेकेंड एक मार्बल लेते टाइम। तो आप भी मानते होंगे क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं और एक ही बार लोगों ने लेनी होती हैं। लकड़ी में भी किसी को कुछ पता नहीं है, पत्थर में भी किसी को कुछ पता नहीं है। और हम पत्थर वालों की भी कहावत यही है कि कहते हैं कि जैसे आपका गोल्ड स्मिथ होता है सुनहरा, तो ऐसे ही आपका पत्थर वाला वेंडर भी एक होना चाहिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो। ट्रस्ट होगा तो आप पत्थर लेंगे, वरना पत्थर ले ही नहीं सकते। दिस इज़ अ फैक्ट। तो सेम हमारी मार्बल लाइन में कहावत है एंड 100% ट्रुथ। तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट अभी हम SRS के ऊपर आएंगे, तो जिसके अंदर ये आपकी टेक्निकल चीज़ें सारी कवर होंगी कि स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए और लोगों के मन में जो रहता है कि क्रैक क्यों डेवलप हो रहे हैं या पोरोसिटी है, ये सारी चीज़ें। तो वो अब टेक्निकल नॉलेज पे हम आएंगे उसके बाद, ये सारी चीज़ें। दीज आर द थिंग्स। इनका जो SRS है ना, दिस इज देयर। तो किशनगढ़ फैक्ट्री के बाद मैं आपको एक और यूनिक चीज़ दिखा रहा हूँ जो सिर्फ स्टोनिक्स इंडिया करता है इन द होल पैन इंडिया। दैट इज़ SRS स्टाफ। ये बेसिकली एक ब्लॉक वैक्यूम प्रोसेस है, वो वीडियो में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आई एम शोइंग यू दैट। इससे पहले जो मैं रोबोटिक्स की आपको बात कर रहा था कि स्टोनिक्स में सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक्स है। कोई ऐसा नहीं है कि इस लैब को एक लेबर आके हाथ से रेजिन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल ऑटोमेटेड, सब रोबोटिक्स है। तो आप इस वीडियो में आप देखेंगे वो सब आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोसेसिंग कैसे होती है मार्बल की बेसिकली, क्योंकि सब कुछ रीचेक ऑटोमेटिकली होता है। तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ कि फैक्ट्री में रोबोटिक्स कैसे काम हो रहा है सारा। At StoneX India, we have been constantly pushing the boundaries of innovation and technology, setting new benchmarks in the industry. ये मैम दिस इज़ ये हमारा लाइव है सब कुछ। We have perfected the ये हमारा फैक्ट्री का ही वीडियो है, फैक्ट्री की गैंगट्री है जहाँ पे ब्लॉक्स रखे हुए थे। ये सब अपना सेटअप है, ये कुछ हमने डिजिटली नहीं ली है। तो एक मैं क्लियर कर दूँ, वी हैव फैक्ट्री इन वेरी लार्ज एरिया इन किशनगढ़। तो दिस इज़ ऑल फैक्ट्री का ही शूट है सारा ये। art of stone processing through our new advanced शुरू से resin लगा? line machine, STNX1, ranked amongst the राइट। At StoneX India, we have been constantly pushing the boundaries of innovation and technology, setting new benchmarks in the industry. We have perfected the art of stone processing through our new advanced resin line machine, STNX1, ranked amongst the best in the world. It begins with the automatic lifting of a slab with a robotic arm. The process starts with drying off the slab to remove all kinds of moisture. The slab then goes for drying of resin, making it roxy treatment on the other side. Carefully inspected. It perfectly calibrates the slab and avoids warpage. The slab is once again sent for drying. इंपोर्ट करते हैं, सपोज इटालियन मार्बल ही फिर इंपोर्ट है, तो उसमें कुछ उस क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जब इंडिया में वो इंपोर्ट होता है तो उसमें भी कुछ वेरिएशंस आते हैं। नहीं सर, क्लाइमेट इस पे ब्लॉक पे कोई दिक्कत नहीं करता क्योंकि इट्स अ हार्ड रॉक।
मिनरल्स हैं, तो कुछ क्लाइमेट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता सर उसके अंदर। ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सच। This is sets itself in the deepest fissures. The slab is then closely inspected one last time. The slab is then sent for final polymerization of resin for almost 3 hours. Full block shape, ready to be polished one last time. This extensive and stringent process ensures that every slab produced has longer lasting shape and strength compared to other stones. Having set the yardstick in quality and service, Stonex India has once again created. Stonex India is set to usher टेक्निकल जो छोटे मोटे एरर रह जाते हैं वो सब एकदम ख़त्म कर दिए। अब नाउ आई एम कमिंग टू SRS कि SRS एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। से उसके अंदर रेजिन डालते हैं तो पिन होल्स भी होते हैं, उसके अंदर रेजिन ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है वैक्यूम के प्रेशर से। आप देखना, दिस इज द ऑल थिंग अबाउट। तो ये बेसिकली 8 स्टेप इन्वॉल्व हैं इसके अंदर हमारे SRS के अंदर कि वी चूज़ द बेस्ट स्टोन सबसे पहले फ्रॉम द ब्लॉक, फ्रॉम द माइंस, एंड वी टर्न इट थ्रू द ब्लॉक रेनफोर्समेंट प्रोसेस। वी कट आवर स्टोन्स इनटू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, विच इज़ 18 mm और 20 mm, एंड वी यूज़ टू कंप्लीट रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी जो आपको पता है। वी यूज़ द इटालियन एपॉक्सी केमिकल्स अच्छे क्वालिटी के यूज़ करते हैं सारे, एंड डबल साइड इटालियन एपॉक्सी फॉर द डबल स्ट्रेंथ, आगे और पीछे स्लैब के दोनों, कि कोई टेक्निकल रहे ना फ्लॉ उसके अंदर। फिर रेनफोर्समेंट करते हैं, मैश जो हमारी होती है वो टॉप क्वालिटी की है, फिर स्ट्रेंथेंड क्वालिटी चेक्स करते हैं बाद में, सब चेक होता है।
उसमें कितने थिकनेस आप रिकमेंड करते हैं? 18 mm। 18 mm होता है उसमें। जो बैकलेट होगा, जो ट्रांसलूसेंट है मार्बल, वो 18 mm 20 mm भी ट्रांसलूसेंट ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो उसको फ्लोर पे भी हम लगा सकते हैं, फ्लोर के ऊपर भी बैकलेट कर सकते हैं, एंड वॉल क्लेडिंग के ऊपर भी वी कैन डू दैट। और काउंटर टॉप्स भी बना सकते हैं, या कोई बार में लगाना है या किसी मंदिर में लगाना है तो बैकलेट हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट है वो ऑल द वे। दिस इज़ बेसिकली SRS। तो मैम जो आप बोल रहे थे ना, जो हर एक किसी का क्वेश्चन होता है कि मार्बल में क्रैक होता है या पोरस होता है, तो ये SRS करने के बाद वो सब वी आर टेकिंग ऑफ द गारंटी कि एक कोई दिक्कत रहेगी नहीं उसके अंदर, सिंपल इज दैट। बट दिस यस मैम, मतलब हमें श्योरिटी है, मतलब मार्बल में ऐसे कोई टाइम की नहीं होती, लेकिन मैम हम गारंटी इन द सेंस कि सॉरी, मतलब मैम मार्बल की कोई ऐसे गारंटी नहीं देते, लेकिन हम इतने श्योर होते हैं और हम मानते हैं कि जो हमारा ये ट्रेड है, हमारा जो बिज़नेस है, ये टोटल क्लाइंट रेफरेंस के ऊपर चलता है। तो आज तक तो मेरे को 8 साल हो गए हैं कि आज तक एक सिंगल क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इस चीज़ में। तो लेकिन अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे रहती है या किसी लेबर की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, तो हम फिर भी उनको सॉर्ट आउट कर देते हैं, वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बिकॉज हमारा ही ट्रेड ही ऐसा है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर रिलेशनशिप्स, तो दिस इज़ अ होल थिंग। और हमें अपने प्रोडक्ट पे, हमें मार्बल पे इतना कॉन्फिडेंट है कि प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और बल्कि जैसे क्या होता है कि आप देखेंगे इस मार्बल के पीछे ना एक मैश लगी होती है, तो लोकल मार्केट में मैश होती है चाइनीज़ मैश, आप सारे देखेंगे जो मैश है, तो इसको उतारना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। हाँ, ये सैम्पल इसलिए। तो अब ये वाला मैश जो है मैम, दिस इज़ इटालियन। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो लेबर लगाते हैं इसको, वो क्या करती है, इसको उतारने में ना पत्थर की जान निकाल देती है बेसिकली, खींचते खींचते आधा पत्थर में क्रैक डेवलप हो जाता है। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने इटालियन मैश लगाई है, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, ग्राइंडर आता है, इसके ऊपर ग्राइंड कर देते हैं 50-60% इसको हमने लगी को ग्राइंड ही कर दिया और फिर उसको हमने प्लेस कर दिया। तो वी आर डूइंग दैट ऑल्सो कि पत्थर की जान ना निकले, लेमैन है, उन्होंने खींचना है, तो ये चीज़ें, तो वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। तो ये मार्बल के साथ हमने एक टेक्नोलॉजी जोड़ दी है, तो जो भी इसके फ्लॉज थे, जो भी इसके एरर्स थे, जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं कि इसको लगा सके, ऐसा कोई नहीं सर, इसको निकालना ही ना पड़े, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट टू दिस ना। यस एग्जैक्टली, ये इसकी एक जैसे सपोर्ट के लिए ही है मैश। लेकिन सर इसको थोड़ा निकालना इसलिए ज़रूरी है, ग्राइंड करना, बिकॉज ताकि एडेसिव इसको पकड़ बना के रखे, दिस इज़ अ सिंपल थिंग। वरना क्या है कि इस फ्लो, हाँ बट मेरा सवाल ये कि हम मैश ही ऐसा लगाएं जिसको निकालना ना पड़े। सर वो अभी तक तो पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा मैश मिल जाए जो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मिल जाएगा मार्केट में तो डेफिनेटली विल यूज़ दैट कि बायोडिग्रेडेबल हो, ऐसा नहीं मिला अभी तक कुछ, लेकिन डेफिनेटली आएगा, बिकॉज इट्स अ प्लास्टिक ओनली, हार्ड प्लास्टिक मैश, लेकिन तो अच्छी क्वालिटी का है, तभी हम इसको 50% ग्राइंड कर देते हैं और फिर प्लेस कर देते हैं, दैट्स इट, 50% डिसॉल्व हो जाता है, दिस इज़ द थिंग। तो सैम्पल्स आप जैसे देख रहे हैं इसके अंदर, दीज आर ऑल ट्रेवेंटाइंस, डिफरेंट कलर्स हैं ट्रेवेंटाइंस के सारे, दीज आर ऑल वाइट्स, वाइट की फैमिली के हैं, फ्रॉम ग्रीस, फ्रॉम पोर्चुगल, फ्रॉम इटली, ये हमारे मेन फ्लोरिंग के हैं। इसमें टर्की के हैं, स्पेनिश हैं, इटालियंस हैं, बयांको लासा, हमें ये चेक करना एक बार, वो द फर्स्ट वन, या हाँ, बयांको लासा में मैम हल्का सा ऐसा पैटर्न आता है, ऑलमोस्ट सेम होता है बियांको लासा, हल्का सा इसमें जैसे छोटे छोटे चिप्स दिख रहे हैं ना आपको, बियांको लासा में ये नहीं होते, वो थोड़ा सा मैट होता है, ग्लॉसी नहीं रहता। बाकी इसका जो बेस है ना, जो ये ब्लैक आप देख रहे हो, ये सेम रहता है, बस इसमें वो मे बी थोड़ा मैट रहता है। इसमें नहीं होगा, लेकिन इसी फैमिली का है। हाँ बिल्कुल सेम फैमिली का। न्यूटन ग्रे है, न्यूटन ग्रे का एक बड़ा सैंपल नीचे गाड़ी में पड़ा हुआ है, और ये वाला कौन सा? सिमिलर टू दैट। छोटे सैंपल में आपको करेक्टर थोड़ा उतना नहीं पता चलेगा, बट कलर टोन इज दैट। सपोज़ली कुछ क्रैक आता भी है तो क्या उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एडहेसिव है या कोई नहीं हो सकता, ये पूरे में क्रैक होगा, और वो क्रैक अगर, वैसे तो हम ब्लॉक को ही ट्रीट कर, माइनर पिन होल्स होंगे या माइनर अगर कोई हेयर लाइन क्रैक होगा तो हमारी इटालियन अपॉक्सी से वो सब फिल हो जाता है, तो वो मतलब पत्थर लोहा बन गया। सैंपल्स है ये ट्रीटेड
यस मैम, सब इटालियन यूज़ करते हैं। इटालियन एपॉक्सी जो कोई आपकी अपनी स्टोनिक्स की है या कोई नहीं मैम, हम इम्पोर्ट करते हैं मैम। इम्पोर्ट? यस मैम, इम्पोर्ट करते हैं टोटल फ्रॉम इटली। तो वो सब मतलब एपॉक्सी ऐसी चीज़ है कि उसको लोहा बना दिया, सिंपल एज दैट। अब ये देख रहे हैं, दीज आर ऑल इटालियन जो फिलिंग करी हुई है, क्योंकि ट्रेमेंटाइन में आप देखते हैं कि होल्स हैं, उसकी ब्यूटी ये सारी हैं, खड्डे। तो ये सब उसमें फिलिंग करके लोग लगाते हैं, कई लोग रॉ भी लगाते हैं। यस मैम, बट वो फिल्म मजा नहीं पता है जब आपको खड्डे खड्डे से फील हो हाथ लगा के। ये देखिए, इसमें देखिए ना, दिस इज द थिंग, दिस इज एपॉक्सी है, बट दिस इज इसमें तो एपॉक्सी, फिलिंग हो गया है ना, फिलिंग होगी क्योंकि स्टोन ही ऐसा है, लाइमस्टोन। तो रखते ही उसको ऐसा ही यस मैम, इस दैट इज़ अ ब्यूटी ना, यही एक आर्ट है, ट्रेमेंटाइन की अपनी है ये ब्यूटी। यस मैम, यस मैम। और इसमें कलर्ड एपॉक्सी भी फिल करते हैं, ट्रांसपेरेंट रेजिन भी फिल करते हैं। हाँ, कलर्ड भी करते हैं, कई लोग ब्लैक चाहिए या गोल्डन चाहिए किसी को, तो वो ऐसा रेजिन डाल देते हैं कलर में मिला के, वो आपने देखा। तो वो ये जाती है उसकी, उसमें कई जगह मैंने देखा कि उसमें रेजिन आपके कलर्ड फिल्ड होते हैं। कई स्टोन्स में मैम, कई होते हैं। यस मैम, कई स्टोन्स में होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वार्टजाइट के अंदर वो प्रॉब्लम रहती नहीं। स्पेसिफिक, हाँ, स्पेशल रिक्वायरमेंट पे, सपोज किसी को गोल्ड चाहिए, गोल्ड ग्लिटरिंग चाहिए या सिल्वर ग्लिटरिंग चाहिए, या किसी को सिरोस्की भी चाहिए अगर, तो इसके अंदर सिरोस्की भी हम काट के और एपॉक्सी के साथ इनबिल्ट कर देंगे, लेइंग कर देंगे बेसिकली। तो उसकी मिनिमम कोई वी कैन डू क्वांटिटी होनी चाहिए। सिरोस्की ऑल्सो, या होती है। यस मैम, सिरोस्की भी देखी मतलब फर्नीचर के ऊपर होती है, मतलब सपोज अगर कुछ सिरोस्की भी इसके अंदर ऐड हो जाती है किसी का। सैंपल दिखाओ ऐसे कैसे? नहीं, सैंपल मैम मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे सपोज ये काउंटर टॉप ही है, इसके ऊपर आपको सिरोस्की चाहिए, आई विल सेंड यू द इमेजेस डेफिनेटली। मेरे पास कुछ सैंपल्स अभी नहीं है क्योंकि इतना डिमांड में नहीं रहता सिरोस्की, बट इट हैपेंस। ग्राइंड करके बीच में हम सिरोस्की भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से रेजिन डाल के फिल हो गया। यस, फॉर लाइफ टाइम, सिंपल, वी कैन डू दैट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मार्बल है, अब क्लासिकल होम्स में क्या होता है, मार्बल के अंदर ही लेइंग होती है। ताजमहल ही देख लो आप, पूरा ताजमहल में सब एक्सोटिक का लेइंग है इंडियन स्टोन में, इतनी अंदर जो वो कारीगरी करी गई है। ये सब मार्बल में पॉसिबल है ना, टाइल में तो आप सोच ही नहीं सकते। ये चीज़ देखिए, अबू धाबी में जो मॉस्क है, थॉसिस वाइट लगा हुआ, वहाँ पे सारा ग्रीक का स्टोन, तो वहाँ पे इतनी अच्छी लेइंग हुई है। तो वहाँ पे पूरा मैम अंदर फ्लावर पैटर्न्स और ये सब कुछ सब इनलेज है, वो दैट इज ऑल इनले। तो ऐसे सिरोस्की भी डाल सकते, प्योर गोल्ड भी डाल सकते हैं। उसमें है एक जगह उसमें लिखा है प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड का वी कैन डू एनीथिंग। प्योर गोल्ड 24 कैरेट डालते हैं ना इसमें, उसमें है, वी कैन डू दैट। बात कर रहे हो उसमें प्योर गोल्ड का भी है। एग्जैक्टली है, उसमें एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे है। यस यस है मैम, बिल्कुल है। तो यू कैन प्ले with marble in your own way, this is the own thing। तो बसंत विहार वाले तो they are big guys, they can do anything। वो तो डायमंड लगा देगा। और मैम देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब हम लोग बातें नहीं करती हैं, इसका हमारे पास एक वैलिड प्रूफ है, वो ये है SRS का। बता सकते हो कि SRS टेस्ट होने के बाद ये उसका रिजल्ट है, प्रॉपर लैब की रिपोर्ट है ये। मतलब हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, हम मतलब ये मार्केटिंग वाली बातें नहीं है, दिस इज ऑल ट्रूथ जो मैं बता रहा हूँ आपको। और इतने श्योर हैं तो हम पूरा इसका ये सब टेक्निकल रिजल्ट हैं उसके, SRS प्रोसेस मार्बल और ट्रेडिशनली प्रोसेस मार्बल के। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, MOH हार्डनेस, देखो 7 की हो गई है इसके बाद MOH। ये मार्बल की हार्डनेस नापने का एक वो है पैरामीटर, तो दिस इज 7, दिस इज 5। ग्रेनाइट का 9 होता है, 8 और 9, मार्बल का 7 कर दिया। ग्रेनाइट इज द हार्डेस्ट, तो दिस इज ऑल थिंग सिंपल ना, दिस इज अ सर्टिफिकेट ऑफ दैट। तो हम क्लाइंट्स को फुल कॉन्फिडेंट के साथ दिखाते हैं और कहीं भी इसको क्लेम कर सकता है कि SRS के बाद क्या है। और थोड़े टाइम में तो हम लाइव अपने स्टॉक यार्ड और शोरूम पे दिखाने वाले हैं ये प्रॉपर लैब रिपोर्ट। आई कैन शेयर विद यू इफ यू वांट, आई विल शेयर विद यू। अपने क्लाइंट्स को हम बहुत बता सकते हैं सब कुछ, सब चीज़ें प्रॉपर लैब टेस्टेड हैं, तब हम इतना कॉन्फिडेंट है। दिस इज द होल रिपोर्ट ऑफ दैट। सो ये SRS प्रोसीजर आप हर एक स्टोन पे करते हैं? हर एक स्टोन पे सर, हर एक ब्लॉक पे करते हैं। ब्लॉक से ही, ब्लॉक पे SRS होता है, फिर बाकी जो हमारी रेजिन लाइन की प्रोसेसिंग है वो रहती है सारी, हर ब्लॉक पे होता है सर। यस सर,
ऑन ईच एंड एवरी ब्लॉक। दैट्स वाई ना सर हम टेंशन फ्री रहते हैं, कस्टमर को हम बोल देते हैं सर वी आर रिस्पॉन्सिबल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी चीज़ पे, क्योंकि वी नो हमारे पत्थर में कितना दम है बेसिकली, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सर्टिफिकेट भी मैं आपको दे दूंगा, दैट्स ए वेरी टेक्निकल थिंग, और आप अपने हम क्लाइंट्स को अपने दिखाते हैं, आप भी दिखा सकते हैं, दैट्स ए वेरी गुड थिंग वी हैव। तो प्रॉपर इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो जो लेइंग का नॉलेज है, क्योंकि देखो ये प्रोडक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि SRS क्या है, किशनगढ़ में हमारी फैक्ट्री है। इसके बाद बहुत टेक्निकल नॉलेज आ जाती है जो मार्बल कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो आई हैव वन मार्बल कॉन्ट्रैक्टर, सूर्यनाथ जी हैं, तो वो भी आएंगे, मैंने उनको बुलाया हुआ है ताकि अपन डेप्थ में कुछ भी पूछ सकें कि मार्बल को एडेसिव से लगाते हैं हम, और मार्बल के ऊपर कितने तरह के पॉलिशिंग होती है, रगड़ाई होती है, डायमंड पॉलिश का क्या फ़ायदा है, ताकि आज आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो फुल कॉन्फिडेंट होके आप भी टेक्निकली, क्योंकि देखो आप लोग आर्टिस्ट हैं सारे, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये सारी चीज़ें भी साथ के साथ अगर आप वो कर सकें। और तो आज हम इसीलिए आए हैं कि आपको सब ऑल क्लियर कर दें डाउट आपके सारे, तो वी हैव दैट। और एक बार बुलाना उनको प्लीज़। जैसे मार्बल स्लैब आ गई मेरे पास, तो मैंने इनको ये भी क्लियर कर दिया कि अपने ने इसको ग्राइंड करके लगा दिया कि पत्थर की आधी जान अपनी नहीं निकली, उसकी सॉलिडिटी बनी रही। अब ये बताओ कि मार्बल आपने लगाना है, मार्बल लगाएं कैसे, और उसके ऊपर पॉलिश कैसे होती है, रगड़ाई कैसे होते हैं, कौन से बट्टे चलते हैं उसके ऊपर पॉलिश, वो आप एक बार एक्सप्लेन करिए सारों को। हाँ मतलब स्टार्टिंग से, कि आप क्लाइंट को बता रहे हो कि सर ये पॉलिश। अपना मटेरियल आ गया जी, उसके बाद हम बेड तैयार करते हैं 10-12 पीसीस का, वो ले करने के लिए, बुक मैच करने के लिए। उसके बाद हम उसको ले करके बुक मैच प्रॉपर चेक करके उसको कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग करके उसके बाद नंबरिंग वगैरह लगा के अपना उसको फिर स्टैक करके रख देते हैं। फिर जहाँ पे ले करना होता है वहाँ पे हम सीमेंट का प्लास्टर करते हैं, वॉश स्टैंड से एकदम बिल्कुल फिनिश्ड प्लास्टर, ताकि उस पर केमिकल से लगा सकें हम। वो 2 से 3 दिन लगता है जी उसको क्यूरिंग वगैरह करके एकदम प्रॉपर फिनिश हो जाए, ताकि प्लास्टर में जान आ जाए। उसके बाद हम एडेसिव यूज़ करते हैं वाइट वाला, या कोई मटेरियल वाइट से लगता है, कोई ब्लैक से लगता है। तो उसको मिक्सिंग मशीन से मिक्स करके प्रॉपर एक वो आता है, गुरमाला आता है लोहे का जी, उससे उसके एक लेयर अपना फ्लोर पे लगानी है और एक मार्बल के पीछे बैक कोटिंग करके उसके बाद ले कर देते हैं। बाकी ये प्रोटेक्टर अपना लगा होता है, तो हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं ताकि वो रफनेस आ जाए उस पर। उसके बाद उसको जॉइंट से जॉइंट करके मैच करके अपना लगा देते हैं जी। उसके बाद उसमें एक्मे वगैरह के प्रोडक्ट आते हैं जॉइंटिंग के लिए, उसमें प्रॉपर कलर मिक्स करके जॉइंट, ताकि हमें बिल्कुल बारीक दिखे। इवन कि हम उस पीस पे खड़े होंगे तो मतलब 3 फीट ऊपर से जॉइंट नहीं नज़र आएगा। फिर उसके बाद ले करने के बाद उसको हफ्ता दिन छोड़ देते हैं जी। उसके बाद उसकी कटाई शुरू करते हैं। कटाई करने के बाद हम उस पर कोटिंग करते हैं उसकी रेक्सिन की जी, जो अपना मटेरियल निकल जाता है कटाई करने में, जॉइंटिंग वगैरह खाली हो जाते हैं। और उसके बाद हम उस पर अपना केमिकल अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक मार्बल डेंसिफायर आता है जो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है मार्बल की, और तो वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद 100 नंबर 100 नंबर के बाद अप्लाई कर देते हैं जिसको। फिर 200 की भट्टी चलाते हैं, 200 की 400 की चला के फिर 400 के बाद भी एक केमिकल आ रहा है वो अप्लाई कर देते हैं। सेम उससे अपना जो मार्बल की पॉलिश होती है और ज़्यादा जान आ जाती है उसमें। फिर उसके बाद 800, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, 8000, 12000 ये पत्ते चलते हैं जी। उसके बाद पाउडर कोटिंग होती है उस पर। पाउडर कोटिंग करने के बाद उस पर कोई दाग वगैरह ना लगे तो उस पर वो केमिकल नैनो लगाते हैं जी, ताकि उसमें कोई दाग वगैरह ना पड़े। नैनो और उसके बाद अपना पैक कर देते हैं फ्लोर। अब मुझे भी एक चीज़ बताओ, ये जो हम पट्टे की बात कर रहे हैं, पट्टे को एक बार एक्सप्लेन करो कि क्या है, कि क्या चीज़ है वो रगड़ाई जो अपन करते हैं वो पट्टे। कितनी
कटिंग सिर्फ 400 तक ही होती है, 400 के बाद पॉलिशिंग होती है। 12,000 तक चलने तक बटी उसकी पॉलिश ज़्यादा देर तक रुकती है जी। नहीं तो मेनली 2,000 के बाद अगर जो हम तैयार करते हैं वही प्रोसेस 12,000 पे पाउडर लगा के उतनी शाइन आ जाती है। नहीं मतलब अगर स्टार्टिंग से शुरू हो कितनी बताया 200 200 100 200 400 तक कटिंग है जी। 400 फिर उसके बाद अपना स्मूथनेस आ जाएगी 800 से। तो वो पत्थर टू पत्थर डिपेंड करता है कि कितने नंबर वाले से करनी है या नहीं सभी पे अप्लाई होता है जी एक प्रोसेस। इटालियन जी इटालियन पे सारे पे। तो वो जो कटिंग करते हैं वो स्पेशली जॉइंट्स पे करते हैं या पूरे पत्थर पे? जॉइंट्स और पूरे पत्थर पे, क्योंकि पहले ही रैक्सिन कोटिंग आती है जी उस पे, ताकि वो रैक्सिन कोटिंग हट जाए उसके बाद पॉलिशिंग। अच्छा, फिर उसके बाद फिर से उसमें कोई फिलर भरा जाता है जी, बाकी वो स्ट्रेंथन ले लें। वो पहले अपना जो होल्स वगैरह खुल जाते हैं या जो जॉइंटिंग वगैरह मशीन चलती है हैवी होती है वो तो निकाल देती है कई जगह जॉइंट से, तो उसकी दोबारा फिलिंग वगैरह होती है, उसके बाद कटिंग शुरू होती है डायमंड मशीन से। देन वी गो फॉर पॉलिशिंग। जी फिलिंग के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी सर कोई अलग कोई कंपनी बहुत सारी कंपनीज हैं उसकी, तो जैसे एक्मे बोल रहे हैं, टीनेक्स है, और भी बहुत सारे कंपनीज के आते हैं प्रोडक्ट। आप ब्रांड भी बता दीजिए इनको थोड़े। एक्मे हो गया जी, टीनेक्स हो गया, विट्टो आ रहा है जी, विट्टो बेलन जोली का आ रहा है जी। मतलब इस टाइम मार्केट में एवरी ईयर कोई ना कोई न्यू ब्रांड आ जाती, तो पॉलिश बरकरार रहती है उसकी। 3 साल आराम से जी। मेनली स्क्वायर वाला एरिया खराब होता है अपना, कि स्लीपर्स वगैरह शूज़ वगैरह डाल के रखते हैं, तो उसी की साल में एक बार पाउडर कोटिंग हो जाती है। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे नित्यानंद जी बोल रहे हैं, देखो सपोज ये पत्थर है और ये पॉलिश सरफेस है, तो जो हमारे लेदर के जूते और चप्पल है ना, और अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो ओबियसली उसके अंदर नीचे लगी होती है रेत, तो जब हम घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो वो जूता काम करता है रेगमार का, क्योंकि लेदर के नीचे सैंड है, सैंड पेपर का काम करता है। तो घर के अंदर अगर हम वो जूता ले गए बार बार तो वो पत्थर की पॉलिश उड़ा देता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, घर के जूते घर के और बाहर के, सिंपल। एंड पीपल आर डूइंग इट मैक्सिमम, तो यही करते हैं, सॉक्स डाल के अंदर रहते हैं वो मैक्सिमम। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन इट। और सेकेंड चीज़ क्या है, अगर नहीं करते ऐसा तो एक 30-40-50 हज़ार रुपये की एक बफिंग मशीन आती है मार्केट में, आप अलांटे देखोगे या 5 स्टार होटल्स में देखोगे, रात को उनकी बफिंग चल रही होती है। उसमें क्या करते हैं, हल्का सा कंडीशनर लगा के उन अपने घर का एक सर्वेंट ट्रेंड कर देते हैं कि एक 6 महीने बाद वो मार ले और प्रॉपर उसकी पॉलिश दोबारा मेंटेन कर ले। जैसे विंटर्स में अपनी स्किन को नरिश करते हैं मॉइस्चराइजर से, तो मार्बल की एक वो मशीन है, लोग अपने घर में खरीद के रख लेते हैं, सिंपल एज दैट। दिस इज द बेसिक थिंग टू मेंटेन मार्बल पॉलिश, दैट्स इट। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व है। बट जूता लेके अगर हम घर बाहर का अंदर ना आए ना, तो बस वो सैंड पेपर वाली आप थ्योरी समझ लो, दिस इज अ फैक्ट, ये चीज़ है। तो आपकी मार्बल को कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी चीज़ में। फिर भी आप 3 साल बाद 5 साल बाद उस पर अच्छे से पॉलिश करवा लो एक, तो एकदम नए का नया हो जाएगा। मतलब मार्बल इज फॉर लाइफ टाइम, सिंपल। और आप वॉल पर कैसे क्लैड करते हो? वॉल पे जी अपना मेनली अपना सीमेंट गोल से तैयार करते हैं, सीमेंट के साथ ही। वो एडहेसिव से नहीं करते? कई जगह मार्जिन वगैरह की प्रॉब्लम आती है ना जी, लेवल में प्लास्टर ना हो, तो इसलिए हम मार्जिन लेके चलते हैं, वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है बाथरूम्स वगैरह के लिए। तो आप ऐसे क्या रेकमेंड करते हैं कि सीमेंट से ही करना चाहिए कुछ? नहीं, एडहेसिव से भी अगर प्लास्टरिंग का काम वो करते हैं, सिविल वर्क करते हैं, तो थोड़ा एरर रहता है उसमें, तो इस वजह से हम वर्टिकल का तो सिर्फ उससे ही करते हैं, सीमेंट से। क्लैंपिंग वगैरह आउटसाइड के लिए क्लैंपिंग वगैरह जी, वेट और ड्राई में। वेट में तो अपना क्लैंपिंग ही हो जाती है, ड्राई में अपना उसके साथ ही नट लग के टाइट मैक्सिमम जी। और नीचे उसको बेस बनाने के लिए 1 इंच। प्लास्टरिंग में इसमें एडहेसिव की कॉस्ट वेरिएशंस कितना मतलब अंतर रहता है कॉस्ट में? सीमेंट और एडहेसिव में, हाँ, सीमेंट से अगर हम लगाएं और एडहेसिव से लगाएं तो 20 से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट का फ़र्क है। लेकिन एक फ़र्क इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि सपोज़ अगर कोई 20-30 लाख रुपए का मार्बल लेता है, ठीक है, तो 1-2 लाख रुपए का कॉस्ट ऊपर आएगा। लेकिन मार्बल की एंड्योरेंस और उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी ना,
तो मतलब देर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल, ये चीज़ है। बिकॉज अब सीमेंट के साथ लगा देते हैं तो नीचे क्यूरिंग नहीं हो पाती, तो वो प्रॉपर उतनी ग्रिप नहीं रहती है। केमिकल से लगाते हैं तो पहले ही प्लास्टर करके उसकी क्यूरिंग करके प्रॉपर एकदम ड्राई हो जाता है एरिया, तो मतलब वो स्ट्रेंथिंग पूरी आ जाती है। उसके बाद केमिकल को तो क्यूरिंग चाहिए नहीं जी, तो वो प्रॉपर फिट हो जाता है उस पर, और होलो रहने का भी चांस कम हो जाता है उससे। तो वॉल पे क्यूरिंग कैसे होती है? वॉल पे तो मार्जिन ज़्यादा कम ज़्यादा होता है ना जी, कुछ प्लस माइनस में वॉल्स करनी होती है थिकनेस वगैरह का, तो जो हम वॉल में डालते हैं वो बिल्कुल एकदम वाटर बेस्ड सीमेंट मिक्स करके डालते हैं, ताकि वो नीचे तक एकदम कोई एयर बॉन्ड ना रह जाए उसमें, नेहरू टाइप। नीरू। और एक और क्या है ड्रॉबैक का सीमेंट से लगाने का, सपोज कोई मेरे पास बेज कलर का लाइट पत्थर है, तो कई बार क्या होता है कि पत्थर ना सीमेंट पी जाता है। आप देखोगे पत्थर के ऊपर ग्रे कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो वो क्या है कि सीमेंट के लगाने की वजह से ही होता है कि पत्थर चूस लेता है। तो एक सीमेंट का उसको ट्रीट करने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से 1-2 केस ये प्रोबेबिलिटी रहती है, दैट इज़ अ थिंग। लेकिन वो पत्थर कई बार शक कर लेता है, क्योंकि वो सीमेंट में वो चीज़ें नहीं है जो एडेसिव के अंदर हैं, उसके केमिकल कंटेंट्स। तो मार्बल के लिए वो एडेसिव ही हम रिकमेंड करते हैं, और वही इसकी लॉन्ग लास्टिंग के लिए सूटेबल है। लाइक कंपनीज लाइक कैराकोल आता है, मपई आता है, उसके बाद आपका मार्मो आता है, बहुत सारे केमिकल कंपनीज हैं। तो दीज आर द थिंग्स। और एक नित्यानंद जी हमें वो भी बताइए जो मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग का भी एक बार समझाइए कि जो स्टेयर्स पे हम करते हैं। कॉर्निस बनती है टॉप लेवल पे लगने के लिए, वो 2.5 इंच की कॉर्निस तो फर्मे पे कटिंग करके सिंगल 2 पीसेस लगते हैं, और उसके साथ 2.5 इंच की सिंगल कॉर्निस बन जाती है। बाकी गोला गलता तो सारा फर्मे पे ही कटिंग होता है, सिर्फ गोला हाथ से बनाना पड़ता है मशीन के थ्रू। गलता तो कितना मैक्सिमम डीप कितना कर सकते हैं? मतलब अगर हम 20 mm का है जी, तो डेप्थ मैक्सिमम 10 mm के आसपास जी। 10 mm मैक्सिमम जी 10 mm मैम डीप हो गया जी। 3 और 3 mm इधर कम से कम जो टक बनता है उसका वो आ जाता है 3 और 4 mm के आसपास। और वॉल पर लगाने के लिए आप कुछ वो भी रिकमेंड करते हो कि प्लाई पर लगाना? उस पर कई लोग कहते हैं कि प्लाई लगा लो, आप प्लाई से एक फ्लैट सरफेस मिल जाए। वॉल कई बार दुनिया में है, कई बार सीमेंट बोर्ड भी बोलते हैं। तो वो आप क्या मतलब वॉशरूम्स वगैरह में तो सीमेंट बोर्ड उतना सक्सेस नहीं होगा, कई बार लीकेज हो गई तो बोर्ड खराब हो जाएगा पीछे। तो प्लास्टर अच्छे से हो जाए तो केमिकल से भी लग सकता है, बाकी सीमेंट से भी। बोर्ड वगैरह पे तो बाथरूम में कभी ना कभी कोई ना कोई लीकेज आ ही जाती है। और जैसे अगर तो ड्राइंग रूम्स में भी लगने लग गए हैं स्टेयरकेस वॉल पर हर जगह, तो उसके लिए तो एडहेसिव से ही लग जाता है जी वो डायरेक्ट। जी एडहेसिव से अगर प्लाई के ऊपर पेस्ट करना है तो केमिकल आ रहे हैं सारे, प्लाई पे डायरेक्टली पेस्ट हो जाते हैं। ऑब्जर्व ना कर ले इसलिए फोर साइड ऊपर नीचे साइड से प्रोटेक्ट कर देते हैं उसको। वही है। बाकी उसको लगाने के बाद उसको पैक कर देते हैं पीओपी डाल के। जब तक फिनिशिंग का काम नहीं आता तब तक उसको ओपन नहीं करते। वही, क्योंकि वाइट की पोरोसिटी ज़्यादा होती है, तो ये बेसिक एक स्टेप सीलेंट करना होता है सारा। एंड उसके बाद भी क्या होता है कि सपोज लगने के बाद भी कोई कॉफ़ी गिर गई या घर पे वाइन गिर गई, वॉट एवर द, चाहे ओला काज है, चाहे आपका सतवारियो है, चाहे आपका कोई भी स्टोन है, वाइट डिओर्पल है, तो क्या होता है कि उसके बाद भी हम एक प्रोसेस करते हैं हमारी स्लैब्स में, कस्टमर एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के वो कराता है टफेंट। हम वाइट मार्बल को केमिकल के अंदर डिप करके रखते हैं, तो हम स्टोन को टफ कर रहे हैं वाइट वाले को, और SRS के बाद भी वाइट को, स्लैब्स को, तो केमिकल में यस मैम, तो उसको क्या होता है कि उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर उसके ऊपर कोई वाइन गिरती है, कॉफ़ी गिरती है, तो पत्थर सक नहीं करता। मतलब 4-5 घंटे बाद भी अगर उसको हम साफ़ करें तो वो सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ अ प्रोसेस वी आर डूइंग इट अगेन इन द फैक्ट्री ओनली। जब इसकी कटिंग वगैरह आप बताते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसके बाद उस प्रोसीजर को दोबारा करते हैं? हाँ, ये प्रोसेस जो ये बता रहे हैं ये हम भी अप्लाई करते हैं आफ्टर कटिंग। जब फिलिंग हो जाती है, पॉलिशिंग का शुरू होता है, उसके पहले हम भी एक बार ले कर देते हैं उस पर एक सूत के आसपास वो केमिकल आता है, केमिकल ऊपर डिप कर देते हैं पूरा, ताकि ऑब्जर्व कर ले 24 घंटे तक। तो 2 बार होता है जी।
तो इसके ऊपर चाहे वाइन गिरे चाहे हल्दी गिरे कोई दिक्कत नहीं है सच। 5-6 घंटे में भी अगर हम साफ़ करेंगे तो एकदम साफ़ हो जाएगा। दिस इज वाइट के लिए मैम थोड़ी स्पेशल हमें मेंटेनेंस रहती है, तो उसी के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। हर एक वाइट पे करते हैं या अगर मैं बोलूँ मुझे चाहिए तो नहीं मैम देखो, वाइट पे हम क्लाइंट्स को ही रिकमेंड करते हैं। दो हम पत्थर की टेक्निकल चीज़ें जानते हैं तो हम उनको स्टार्टिंग में ही रिकमेंड करते हैं कि आप ये प्रोसेस कराइए इसके ऊपर, क्योंकि घर में स्टोन एक बार लगना है, बार बार नहीं लगना, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आप भी टेंशन फ्री रहेंगे। क्योंकि देखो किचन में भी अगर वाइट नीचे लगा हुआ है या बच्चे ने कोई कॉफ़ी गिरा दी या जूस गिरा दिया कुछ भी है तो चांसेस रहते हैं, तो वो हम पहले ही क्लियर करते हैं उनको और इस प्रोसेस हम रिकमेंड करते हैं उनको। अभी रिसेंटली पंचकूला में 2 साइट्स पे बैंको लासा आया है हमारा 10,000 स्क्वायर फीट, तो उनका पूरा प्रोसेस करके ही आया है ये। SRS टफ केमिकल में डिप करके पूरा, किसके लिए अलग से फैक्ट्री में इक्विपमेंट है जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में, तो उसके अंदर डिप रहती हैं। ये 20 डेज़ का प्रोसेस होता है। 20 डेज़ प्रोसेस होके जब वो केमिकल सूखता है तो मार्बल के अंदर क्रिस्टल्स डेवलप हो जाते हैं, तो दैट मेक्स द मार्बल वेरी स्ट्रॉन्ग। पत्थर लोहा बना देता है बस, आप समझिए। तो सब पोरेसिटी खत्म, सब कुछ खत्म। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी अगेन वी आर यूजिंग इट, पूरा डिप करके। आसानू चीज़ें हैं बस मैम, बाकी देखो इतने कॉम्बिनेशंस के साथ नेचुरल मटेरियल है, अच्छे रिजल्ट्स तो निकल के आते ही आते हैं। कोई आपको जॉइंट्स नहीं दिखेंगे पूरे घर के अंदर, कोई आपको बैलेंस ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, सब फ्लॉस कवर हो जाते हैं ग्राइंडिंग होकर, सब कुछ। मार्बल है ही एक चीज़ है, तो इसलिए मैं तो इसको बोलूँगा नहीं कि अपन इसको टाइल के साथ किसी क्लाइंट के साथ भी कंपेयर करें, बिकॉज देयर इज़ नो कंपैरिजन विद टाइल, एनी ऑफ द टाइल, चाहे इटालियन है चाहे स्पेनिश है, देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। सो इसमें आपकी क्या कॉस्टिंग आती है अगर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन विद मार्बल? मतलब सपोज अगर 350 स्क्वायर फीट का कोई मार्बल है तो उसमें आपकी इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट एक बार तो लेबर कॉस्टिंग 120 विद पॉलिशिंग चल रही थी। 120 जी, डायमंड पॉलिश। उनको नितिन जी एक बार डायमंड पॉलिश का भी फ़र्क बताइए, नॉर्मल पॉलिश और डायमंड पॉलिश में क्या फ़र्क रहता है, उसकी चमक में क्या फ़र्क रहता है? चमक इसकी लॉक हो जाती है बिल्कुल ही, मतलब इतनी जल्दी नहीं निकलती इसकी डायमंड पे, और एकदम शीशे की तरह फ्लोर बन जाएगा जी। तो जो 3 इयर्स वाला आप बता रहे हैं वो डायमंड के लिए? जी, 3 इयर्स की अगर जो 5,000 नंबर की पट्टी का प्रोसेस वो कह रहे हैं, दैट मींस वो हम डायमंड की बात कर रहे हैं। जी जी, तो डायमंड ही वैसे कराना चाहिए नॉर्मली? जी देखो सर, डिपेंड करता है। आज की डेट में तो देखो ट्रेंड एकदम उल्टा भी हो गया है कि नाउ पीपल आर यूजिंग मैट फिनिशिंग, कि वो घर में पॉलिश नहीं करवा रहे, ग्लॉस नहीं चाहिए उनको, दे वांट मैट, दे वांट लेदर फिनिश। तो वो फिनिशेस भी आज फ्लोरिंग पे यूज़ कर रहे हैं। हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स अच्छे किए थे जफ़र सर के साथ लुधियाना में, वी डिड अ बिग फार्म हाउसेस, तो पूरे घर के अंदर हमने वहाँ पर लेदर फिनिश दी है, NSL। तो सी सर, यू पीपल आर आर्टिस्ट, अब आपको कैसे आर्ट क्रिएट करनी है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन मार्बल, इनलेस एवरी फिनिशेस सब पॉसिबल है। कई लोगों को ग्लॉस नहीं पसंद, दे वांट मैट, दे वांट लेदर, तो एवरीथिंग। तो जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं, मतलब उसको किस तरीके से प्लेसमेंट है, क्या लगाना है, क्या इसके लिए? एक्सटर्नल के लिए जैसे ट्रेमेंटाइन हम लगाते हैं नित्यानंद जी, उसके लिए बताइए क्या रहता है? उसके लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं जी, एडेसिव जी। बफिंग का रिक्वायरमेंट होता है आफ्टर 3 इयर्स या 4 इयर्स? हाँ, उस पर भी बफिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा जी, क्योंकि जो अपना रेन वगैरह होती है उससे और डस्ट वगैरह पकड़ी होती है वो फिर जमने लगती है एकदम, वो जम जाएगी फिर वो पॉलिश डल दिखने लगेगी। अगर वो भी हम 2-1 साल बाद एक बार प्रोसेस करवा लेते हैं तो शाइन प्रॉपर बनी रहती है उसमें। वही है ना सर, देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम है सब कुछ, एक्सट्रीम रेंज, एक्सट्रीम धूप भी है, गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी भी है, और घर बेचारा सब कुछ झेलता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर, आप ही का आर्टिस्ट का ये रोल प्ले होता है इसके अंदर भी, डायरेक्शंस। जैसे अब सनराइज़ कर रहा है ईस्ट से, तो वहाँ पे स्टार्टिंग की सनरेज आएंगी और दोपहर को सबसे ज़्यादा हार्श होती हैं सनरेज, ठीक है। तो मतलब ये सब डायरेक्शंस भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि किस डायरेक्शन में क्या स्टोन लगाएं या किस डायरेक्शन में हम इसमें फंडरमैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब डायरेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्टोन में, क्योंकि अगर आपको बाहर पॉलिश लगवाते हो आप, तो देखो थोड़े टाइम में पत्थर की पॉलिश 3-1 साल में निकल जाती है, वो पॉलिशिंग करवाना पड़ेगा। एक्सट्रीम धूप, डस्ट, सर्दी, गर्मी, सब चीज़ें उसके लिए हैं, ठीक है। और
उसके लिए भी हम रिकमेंड करते हैं कि वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशेस, हम उसमें फिनिशेस यूज़ करें। उस बाहर के लिए हमारे पास वी हैव नंबर ऑफ फिनिशेस। तो ये जो मैंने आपके लिए एक ई बुक तैयार की है आप लोगों के लिए, इसके अंदर मेरे पास कुछ 7 फिनिशेस हैं डिफरेंट तरह की, चाहे वो लेदर है, चाहे वो कॉम्ड है, चाहे वो हॉर्न्ड है, चाहे वो सैंड ब्लास्ट है। तो ये सब फिनिशेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। ये अब यहाँ पे मेरा चैप्टर है I'll show you processing of natural stone, classification of natural stone के अंदर वो आपको सारी फिनिशेस मिलेंगी। कितनी तरह के फिनिशेस होती है मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ एक बारी। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं सारा बाहर के लिए। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस ऑफ नेचुरल मार्बल। तो ये भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि कोई भी हमारे दिल में डाउट ना रहे, क्लाइंट के साथ हम एकदम कॉन्फिडेंस से बता सकें उनको। जैसे फ्लेम्ड है, फ्लेम्ड फिनिश क्या होती है, तो दिस इज़ अ डेफिनेशन, उसको कैसे किया जाता है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दैट। पॉलिश्ड जो हम ग्लॉस मान रहे हैं, एंड दिस इज़ हॉन्ड, हॉन्ड क्या होती है, ठीक है। एंड लेदर, लेदर को टम्बल्ड भी बोलते हैं हम, तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ फिनिश। वन इज सैंड ब्लास्ट, दिस इज़ अगेन अ फिनिश। वन इज शॉर्ट ब्लास्ट, वन इज थर्मल, थर्मल फिनिश के अंदर हाई फ्लेम अप्लाइज करते हैं उसके ऊपर। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस, हम क्लाइंट्स को भी आगे गाइड कर सकते हैं। अब फिनिश होगी बाहर, अब पॉलिश ही नहीं होगी बाहर एलिवेशन पे तो उड़ेगी ही नहीं। अब फिनिश के साथ एक तो और सुंदर अच्छा लगेगा एलिवेशन, और हम टच करेंगे तो ऑब्वियसली एक लेदर की तरह अच्छा लगेगा यहाँ जो भी फिनिश होगी। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फिनिशेस। इट्स लपाटो इज अगेन मैट, मैट कम लेदर टाइप। लपाटो टाइल जो आती है बेसिकली, यस मैम, यस मैम, सब इंक्लूडिंग है, बट नाम कोई इसको लपातो बोल रहा है, कोई इसको लेदर बोल रहा है। यस मैम, स्मूथनेस होती है, राइट राइट राइट, वैसे ही है। उसमें बाकी क्लासिफिकेशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, मतलब यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज, बिलीव मी। ये मैम आपको पीपीटी आएगी, दिस इज ई बुक फॉर यू ओनली। आप इसको आराम से पढ़िए जब भी आपको टाइम मिलेगा, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू नो कि जियोलॉजिकल टाइप क्या है मार्बल का। इवन ये मैं बद्री सर को प्रेरणा मैम को भी दूंगा, दो उनको शायद सब पता होगा, लेकिन दिस इज द हार्ड कोर हमारे ट्रेड का, एंड टू कनेक्ट विद नेचर कि क्या कैटेगरीज हैं और प्रॉपर डिफाइंड है ये। और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि ग्रेनाइट कैसे बना और बसाल्ट क्या है, एंड मेटाफॉर्मिक रॉक में क्या क्या आते हैं, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, मार्बल का क्या है डेफिनेशन, कैसे बना वो, सेडिमेंट्री रॉक टाइप्स क्या है, सैंडस्टोन क्या है, ट्रेवेंटाइन भी इसमें कवर्ड है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो दीज आर द थिंग्स जो कवर्ड हैं। ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई मीन इसमें मुझे 6 महीने लगे हैं ज़रूर क्रिएट करने में, बट लॉकडाउन का मैंने पूरा बेनिफिट लिया है इस चीज़ के अंदर। तो आई स्टार्टेड एंड राइट इट डाउन, मैंने सब मतलब एकदम अच्छे से इसको प्लान करके तैयार किया, एंड यू लव इट, बिलीव मी। और सर कुछ टेक्निकल मतलब लेइंग के टाइम में कुछ आप प्रॉब्लम आती हो क्लाइंट के लिए, अपन के पास कुछ नहीं रहता कि इसको कैसे करें या क्या करें। वैसे मैक्सिमम तो क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं मार्बल, वो सब एकदम उनको प्रॉब्लम आने ही नहीं देते, सब उनको आंसर्स रहते हैं सारे। आप लोगों को भी अगर कुछ चाहिए हो तो नित्यानंद जी हैं, सूर्यनाथ जी जो इनके फादर साहब हैं, तो एक हम इनका बिजनेस कार्ड मैं आपको दे दूंगा। कुछ भी आप इन फ्यूचर में कोई भी क्वेरी हो आपकी तो यू कैन डायरेक्टली आस्क, एंड कुछ भी काम हो तो मतलब हैं चंडीगढ़ बेस्ड ही हैं, इधर ही रहते हैं, और मैक्सिमम चंडीगढ़ का सबसे बड़ा अच्छा काम ये लोग करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ है। अब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, अब कुछ नहीं है, बाकी सब वो मैम मतलब ना फर्स्ट और सेकंड के बीच में ना गैप इतना बड़ा है कि वो अचीवेबल ही नहीं। तो देन यू अंडरस्टैंड कि व्हाई यू इवन पेइंग फॉर दिस स्टोन, व्हाई योर क्लाइंट पे फॉर दिस स्टोन फॉर दिस प्राइस, एंड व्हाई नॉट जब आपको बोला जाता है ना कि अरे उसके पास वो पत्थर उस लॉट का उस प्राइस पे मिल रहा है, उधर से ले लेते हैं। यस, तो SRS इज़ दैट थिंग, मतलब कि वो सब माइनर से माइनर चीज़ें पत्थर के अंदर छोटी सी छोटी,
जिसी की मैं मानता हूँ सर कितने लाख डॉलर्स की बिडिंग थी, पेंटिंग्स भी वैसे पेंट करी है इंसान ने, आर्टिस्ट ने। तो सर दिस इज़ ऑल्सो पेंटिंग मेरे अकॉर्डिंग, बट दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ गॉड, ये नेचर ने बनाई है और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं और ये सच भी है, दीज आर पेंटिंग्स। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जो भी हमारा एग्जॉटिक है वी आर प्रमोटिंग इन दैट वे कि वो पेंटिंग्स की तरह लोग घर में यूज़ करें एक वॉल पे। एंड वी डिड इट, एक पंचकूला में भी सर एक हमने अमोंजोनाइट दी है, तो एक पेंटिंग की तरह उनकी पूरी लॉबी में लग रहा है, वन सिंगल स्लैब अमोंजोनाइट। तो दिस इज वी आर डूइंग राइट नाउ। तो वी आर टेकिंग इट टू नेक्स्ट लेवल कि इसको कनेक्ट कर रहे हैं नेचर के साथ। मैं से एक प्रोजेक्ट में पेट्रोकोनिया लगा, आई नो दैट, मुझे मैम ने बताया इन डेली प्रोजेक्ट। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, एक अलग लेवल पे इसको मार्केट वैसे कर रहे हैं कि मतलब वो प्यार हो जाए। मतलब और सर देखो ना सर, मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, दिस इज अ स्टोन, ब्राज़ील का स्टोन है, और इतने मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। अब आप पेंटिंग कोई कर रहा है तो गॉड ने सर पेंट करी है, तो दिस इज अ होल थिंग, तो ये कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। Hi. So basically, like, it was a very informative and enjoyable training session, which I could guess it from my people. So the main idea of it is it's a nice way how StoneX brings in like a lot of emotion or creativity into a product and how they explain it to different people. And I think it is a very good way where they try to get to the basic root level of a situation, and then you try to involve everybody or the stakeholders to understand how the product has been formed. I think because it is also true that though we see a lot of many a times people, like, even it is also probably good for clients also for understanding, because many a times they just ask for certain colors and stones, which for us it becomes very difficult to understand, to explain them that why certain colors doesn't exist in stones. Like, they consider it's like you can have any kind of color of stone. So there are certain ways, like these kind of things, at least you have more respect for it. And sometimes people, when they see granite, they say that no, this is too loud and this is too busy, but probably it's the way it is, and you need to have an acceptance to understand those kind of what the natural elements exist. And that is what I think would have been been representative in this kind of presentations, and it helps the community at large, like, to understand about the product itself. Thank you.